انگلیوں کا. ہاں اب کوئی لوگ موٹے ہوتے ہیں یا زیادہ دیر وہ لوگ اس طرح کھڑے ہوئے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ تھوڑا, کیونکہ دین آسان کا نام ہے, مشکل کا نام دین نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیے اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے اللہ اکبر کے لیے. کہاں تک؟ اب ہمارے بعض لوگوں میں جوانوں میں اکثر آ گئے کہ تھوڑی تبدیلی آ گئی. کیا بولتے ہیں؟ اولڈ از گولڈ. پرانا ہوتا ہے نا وہ بڑا گولڈ ہوتا ہے. اب انہوں نے چائنیز مال دیکھ کر ادھر بھاگ جاتے ہیں, شکلیں دیکھ کر مشکل ہو جاتا ہے. حنفی طریقہ آپ کو کانوں تک ہاتھ دے. کہاں تک؟ دیکھیے نا, آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ کان کی لو کو چھوئے, یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ ہم مسئلہ بھی صاف بتا رہے ہیں, یہ مستحب ہے. لیکن آج تک جتنے, چاہے نبی کے بعد میرے صحابہ ہو یا اس کے بعد تابعین ہو, تابعین ہو, حنفیوں کی بات کر رہا ہوں, امام اعظم کے جتنے بھی مقلدین ہیں سب نے یہ طریقہ بیان کیا. اب حنفی کہلانے والے بھی کہہ رہے ہیں ادھر رکھنا بھی جائز ہے. بھائی امام نے جو کیا وہ کرو نا, تب نہ حنفی مانیں گے. تو امام اعظم کا طریقہ اور تمام اکابرین نے انگوٹھے کو جو ہے وہ کان سے. اب یہاں بعض لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, بعض ایسا کرتا ہے پیچھے سے, ایسا لگا پیچھے والا رشوت دے رہا ہے یا وہ لینا ہے, کیا سسٹم ہے وہ نہیں. آپ کے ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہونے چاہیے. کہاں کی طرف؟ بس اللہ اکبر. آپ ہاتھوں کو کام کرنا ہے. دیکھیے یہ لایا, ہر چیز انگلیوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے. ضروری نہیں کہ آپ بالکل سختی سے پکڑ کے لا رہے ہو, اپنی حالت پر نرمی سے ہاتھ کو لانا ہے. کہاں تک؟ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ کانوں کی لو کو چھونا چاہیے. یہ آپ کا پہلا ہے. اور قیام کے بعد یہ تکبیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. یہ میرا فرض بھی ہے, تکبیر تحریمہ. اگر کسی کی یہ بھی درست نہ ہو تو پھر باقی چیز کتنا بھی کرے ادا. ہاں یہ اب تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. ہاتھ لے لیا, اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنا ہے. اپنے سیدھے ہاتھ کی یہ ہے نا ہتھیلی, اس کو الٹے ہاتھ کے ادھر رکھ کر چھوٹی انگلی کو نیچے کی طرف, انگوٹھے کو ادھر کی طرف لینے کے بعد ناف کے نیچے باندھنا ہے. کس کے نیچے؟ ناف اس کے نیچے باندھنا ہے. اب تو ہمارے بزرگ بھی ایسے کرنے لگے, ان کو بھی پتا نہیں اپنی ناف کہاں پہ, وہ بھی ہاتھ تھوڑا اوپر کرنے لگے. ناف کے نیچے باندھیے, ناف کے نیچے. دیکھیے اب باندھنے کا طریقہ, یہ باندھ لیا. اب یہاں پر قرات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ سنا چھائی وغیرہ جس کو نماز سنا بولتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. اب قرات سمجھیے. سورہ اللہ اکبر کے ناف کے نیچے, ناف کو نظر کو نہ چھوڑنا.
अच्छे तरीके से तमाम उलमा इकराम थोड़ा नजर फरमाइएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा ठीक है। अब हमें समी अल्लाहु लिमन सीधे खड़े होना है। माशाअल्लाह एकदम सीधी होनी चाहिए आपका, इंशाल्लाह फिर आप खड़ा होना सीधा होगा। ठीक है ना। और इसका तो जो सीधे खड़ा भी होता है ना, उसको कभी कमर दर्द भी नहीं होता है। अब जाना है सजदे में। सबसे पहले क्या उतारना है? उसके बाद दोनों हाथ, उसके बाद फिर माथा। आइए ये वो कम से कम उन्हीं के क्या लूं आपके दोनों बाजू जमीन से ऊपर होने चाहिए। दोनों पैर जो है वो देख लीजिए माशाअल्लाह। आपके बाजू जमीन से टच नहीं होंगे ना, बगल से लगेंगे। आपके बाजू और आपके बगल में, बगल और बाजू से थोड़ा फर्क बगल से है। भी एक सब में अगर 30 बंदे आते हैं तो 30 ही बैठो, उसमें 35वां मत घुसाओ या 32वां मत घुसाओ। अब सजदे से खड़े होना है ना। पीछे वाला देखा सबका हाफिज साहब या अब तशहुद अनिया तहियात है बेनियाज अल्लाहु अकबर से बेजा बैठने का तरीके भी चाहिए। एक उंगली का लगाना वाजिब, 3 का लगाना, 1 का लगाना फर्ज, 3 का लगाना वाजिब, पूरे का लगाना सुन्नत। एक उंगली का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है ठीक है। नजर को ना छूने आपसे पानी जहाँ आपका सजदा, जहाँ आपकी पेशानी लगेगी वहाँ आपकी गद्दी सीने पे सीने या तो सीने में रखो या फिर बहुत में रखो, दो जगह में आप नजर रख सकते हैं। ठीक है ना, हो गया ना। यही तरीका है। क्या तरीका है? अब हनफियों का तरीका यही है कि बस इसी तरह नमाज पढ़ना है। कानों को हाथ उठाना है, जवान दूसरे की सोच में पढ़ो ही मत। अपना हनफी तरीका ये है, इमाम आज़म वाला अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है? पूरी तशहुद पढ़ा,
उसके बाद क्या करना है, सलाम फेरना। पहले किस साइड फेरेंगे, फेरिए तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नजर कहाँ रखेंगे, हाँ पीछे वाले को नहीं देखेंगे। तो फिर दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज का पूरा सलाम फेरोगे, नियत करोगे दाहिने साइड मुक्तदी, एक तरफ बाइने साइड की मुक्तदी, और इमाम की भी नियत करोगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है ना जो, ये नमाज का प्रैक्टिकली तरीका था। अल्लाह पाक हमारा सीखना सिखाना कबूल फरमाए, हम सब के बख्शिश का जरिया बनाए और हमारे मरहूमीन को इसका इसाल सवाब अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को सही मानों में अहले सुन्नत के बराबर जो है ना वो नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें अहले सुन्नत वल जमात पर साबित कदम रखे और तमाम हाजतों को हमारे रवा फरमाए। सुन्नतों को 5 मिनट आपको दिया जाएगा, सुन्नतें पढ़िए। नमाज के बाद अगर किसी को कुछ मसला हो 10 मिनट आपके सवालात के सुनूंगा, फिर जवाब मिलेंगे। 10 मिनट से ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका रिजन जवाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप हमारे गौसिया जामिया मस्जिद शरीफ में हमारे मौलाना अल्ताफ़ साहब के बयानात को आगे पहुँचाने के लिए, अवाम उन्नास तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं और मौलाना अल्ताफ़ सकाफ़ी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन चीज़ों को के बारे में हमें इल्मियत नहीं थी दीन इस्लाम में, ख़ासकर जो हमें नमाज के फ़राइज़ों का, नमाज़ पढ़ने के तरीक़े का, वज़ू करने के तरीक़े का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस्लाम के अंदर हमारे और हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद भी हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ सीखने का है। तो हमें बहुत खुशी हुई है हमारे मौलाना अल्ताफ़ सकाफ़ी साहब ने ये जो कदम उठाए हैं, एक कदम खुद के लिए, इसमें हर वक्त हम शाना बशाना इनका साथ देंगे क्योंकि हमारे दीनी मसाइल है। ये न किसी की इसमें गोजोई या किसी इसके बारे में नहीं है, यहाँ पर सियासी नहीं है, न किसी और गरज से न कि हम यहाँ जमा होते, ये हमारा दीनी ये है। तो ये हमारी ये मस्जिद शरीफ है, यहाँ पर हम इसी गरज से और हम अल्लाह का शुक्र गुजार अदा करते हैं कि हम इन चीज़ों से बहुत सारे लोग जवान बुजुर्ग नावाकिफ़ हैं फ़राइज़ों के बारे में, सुन्नतों के बारे में, कपड़ा पहनने से लेके खाने के आदाब से लेके बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत पीछे थे। तो ईद के जो परेड के आयाम पे हमें बहुत कुछ मिला है और सीखे भी हमने बहुत कुछ। जो हमने नहीं सीखा था वो हमने मौलाना साहब से सीख लिया है। तो हम मौलाना साहब का और दीगर उलमाए इकराम का दराज के जितने भी हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे बीच आके उलमाए इकराम हमें इन चीज़ों को जो है हमारे बीच शेयर करते हैं और हम इनसे सीख लेते हैं। तो बाकी मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवालात रहेंगे, हमारे जवाबात रहेंगे और बहुत सारी रूहानी आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था ये आप बखूबी जानते हैं, ये अवाम उन्नास जानती है द्रास की। ये एक कदम खुद के लिए की एक कड़ी थी जो सिलसिला चला है। हम लोगों ने तबलीगी इज्तिमा होते हैं, यहाँ पे तरबियत दी जाती है मुख्तलिफ दीनी मसाइल की जो ज़रूरी बुनियादी मसाइल। तो आज का प्रोग्राम भी हमें तरीक़ा नमाज पर था, बहुत अहम रहा। आवाम ने हमारा सपोर्ट तरबियती प्रोग्राम के लिए हरदम किया है। जब भी हमारे आवाम जोक दर जोक चली आई। ये अवाम उन्नास की उलमा के तही मोहब्बत है और हम उनकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं, उनकी मोहब्बतों के कर्जदार भी हैं। आप मीडिया हज़रात के भी हम शुक्रगुजार हैं कि वक्त यहाँ तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुँचाने में आप अहम रोल करते हैं। तो अवाम उन्नास को मैं आज की इस प्रोग्राम से यही पैगाम दूँगा कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह की काउंसलिंग्स में आप हाजिर हुआ करें क्योंकि ये दीन के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको जानना हमारे लिए और जानना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जो हमसे बार बार दीन की खिदमत ले रहा है, अल्लाह ताला का ये एहसान है। और उसके बाद हम अवाम उन्नास का शुक्र है जो हुजूम दर हुजूम जो है गौसिया जामा मस्जिद में आ रही है। उसके बाद आप मीडिया वालों का हम शुक्रगुजार कर रहे हैं। आज का जो एक कदम खुद के लिए प्रोग्राम था ये जो है नमाज का प्रैक्टिकली तरीके के मुतालिक था। नमाज इस्लाम की बुनियाद भी है, पिलर्स आप उसमें इस्लाम में जो है ये नमाज भी आता है। तो जिसके बारे में हमने लोगों को सिखाया तो लोग भी काफ़ी खुश हुए और आज लोगों के सवालात सुने, उनके जवाबात दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उन्नास जो है हमेशा हर मामले पर हमारे साथ खड़ी भी रहती है और उनको तसल्ली बख्श जवाब भी मिलता है। और हम अभी गुजारिश कर रहे हैं माह रमज़ान में हमारा आधा घंटे का ये मसलाई का जो है वो चलेगा ज़ोहर की नमाज के बाद टाइम, उसमें वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाए और माह रमज़ान में ज़ोहर के लिए ख़ास कर गौसिया जामा मस्जिद आने की कोशिश करे ताकि वो अपने सवालात करे और जवाब भी हासिल कर पाए।